See, our first chapter was over. I hope you remember our first chapter is done. You guys remember? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So we are beginning today with a new chapter, second one, introduction of life insurance plans. Here plans mean schemes. Okay, so types of life insurance plans. Okay, so this is our chapter and this is what we are going to cover in this chapter. These all points we are going to cover in this chapter. So basically what do you have in this chapter is life insurance plans. Okay, so by now you know what is a life insurance product. ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट तो इंटेंजिबल होता है. इंटेंजिबल मतलब हम जिसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन वी कैन बाय एंड सेल इट इन द मार्केट. लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पॉलिसी होल्डर्स को बेचा जाता है. ओके, और लाइफ लाइफ को उसमें मतलब एक्चुअली तो वो डेथ इंश्योरेंस होना चाहिए, बट लाइफ को उसमें हम लोग इंश्योर करते हैं. ठीक है, और टेंजिबल प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हो. अगर आप इंश्योरेंस में जाते हो तो टेंजिबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे कार का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस. तो वो टेंजिबल प्रोडक्ट का इंश्योरेंस हो जाता है, जिसे हम जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं. अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो वो होता है आपका intangible insurance. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल एंड intangible. Tangible is the one that we can touch and feel, and intangible सिर्फ आप उसको फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते. ठीक है, नाउ कम टू ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स. अभी मैंने आपको बताया ना, हमारा चैप्टर ही पूरा प्लान्स पे है. तो 3 टाइप ऑफ प्लान्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की. किसी भी लाइफ इंश्योरेंस में आप चले जाइए, उसमें 3 टाइप ऑफ प्लान्स होते हैं. आर यू गाइस फॉलोइंग मी? Yes, ma'am. या, Yes, ma'am. ओके. सो सी, नंबर 1 इज होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स. होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होल लाइफ? होल लाइफ अभी हम लोग बहुत डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं, बट लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट अबाउट I mean a little about whole life insurance policy. Whole life insurance plans means you take insurance, life insurance policy for your lifetime, for the life, for full life. Now we don't know when we will die. We don't know exact date and the year. Okay. Therefore, it is known as whole life insurance. That means till the person is alive, the life insurance policy will go on. Okay, that is known as whole life. Okay, here term period is not decided because we don't know the death period, the death year, and the death date. Therefore, it is known as whole life. Okay, next is term insurance plan. Term insurance plan means term is decided 20 years, 40 years, 50 years. Term is decided. So usually we take term insurance policies. Okay, majority people take term insurance policies, like for particular term, for particular period. Term means period. For particular period you are going to take a life insurance policy, that is known as term insurance plans. And next we have endowment life endowment insurance policy. It is a combination. So there are many types of traditional life insurance product. See, one by one we will see. Term insurance plan. It is valid only up to certain period. That means that has a specific period in the contract. That specific period can be 65, 70, or maybe 30 years, maybe 40 years. Okay. The term can range from as short as it completes an aeroplane trip, as long as 40 years. आपका जो ये रेंज है ना, ये जो पीरियड का रेंज, रेंज मतलब डिफरेंस, तो ये डिफरेंस तो छोटा भी हो सकता है. अभी हम लोग कभी कभी ना ट्रैवलिंग इंश्योरेंस लेते हैं, तो जब हम ट्रैवल में लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस में भी आता है आपको ये एयरप्लेन ट्रिप. अभी हम ना फ्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ से मैं दिल्ली जा रही हूँ, और
मैंने बुक करा दी एयरप्लेन टिकट्स। अब अगर वो एयरप्लेन क्रैश हो गया तो एयरप्लेन की वजह से मेरी डेथ हुई ना, क्रैश होने की वजह से, तो डेथ पे जितना अमाउंट मेरी फैमिली को मिलेगा ना, वो तो छोटे टर्म पे मिला ना आपको, बहुत एज शॉर्ट एज, मतलब बहुत आपने शॉर्ट पीरियड का इंश्योरेंस करवाया था, ठीक है। सो द टर्म कैन रेंज फ्रॉम एज शॉर्ट एज इट टेक्स टू कंप्लीट एयरप्लेन ट्रिप, एज लॉन्ग एज वो इतना बड़ा भी हो सकता है कि आप 40 years का लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हो, ठीक है। प्रोटेक्शन में भी एक्सटेंडेड एज may extend up to age 65 to 70 year, 1 year टर्म पॉलिसी। मतलब आपकी जो टर्म पॉलिसीज होती है ना, टर्म मतलब पीरियड पॉलिसी जिसमें पीरियड फिक्स होता है, वो आपकी 65 to 70 years के एज तक एक्सटेंड हो सकता है। सपोज आप अभी 30 years में, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, सपोज आप अभी 30 years में, ओके, तो आपने 30 years में पॉलिसी खरीदी, फर्स्ट पॉलिसी आपने कभी खरीदी जब आप 30 years के लिए 30 years के हो गए। अब आप अर्न करते हो, खुद अर्न करते हो, तो आपने पॉलिसी खरीद ली। अब आपने पॉलिसी खरीदी है 20 years के लिए, तो पॉलिसी मैच्योर कभी होगी, जब आप 50 years के होंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो 30 + 20 50 years के जब आप होंगे तब आप ये पॉलिसी मैच्योर करा सकते हो, या फिर आपके ऑप्शन है कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। हम ये प्रोटेक्शन मतलब लाइफ इंश्योरेंस मेरे लिए प्रोटेक्शन ही तो है, तो हम ये प्रोटेक्शन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एक्सटेंडेड अप टू द एज ऑफ 65 और 70। हम लोग एक पॉलिसी को अपनी 70 years तक, जब हम 70 years के होंगे ना तब तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड दे आर क्वाइट सिमिलर टू प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ही बना होता है, इसमें दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इंश्योर्ड एक इंश्योरर, और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें लिखी हुई है ना वैसे चलना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स आप ब्रेक नहीं कर सकते। All premiums received under such policy may be treated as earned towards the cost of mortality risk by the company. अब कंपनी इतना बड़ा आपकी रिस्क लेती है आपकी लाइफ का, अब कभी भी डेथ हो सकती है हमारी, तो कंपनी हमारी फैमिली को पे करेगी ना हमारी डेथ की वजह से। तो इतना बड़ा अगर कंपनी रिस्क लेती है तो कंपनी क्या चाहती है, आपको क्या पे करना पड़ेगा, कंपनी क्या लेती है आपसे उसके अगेंस्ट में? प्रीमियम। यस, प्रीमियम। सो वो ही लिखा हुआ है, जो भी प्रीमियम कंपनी को मिलता है ना, वो कंपनी इसलिए लेती है क्योंकि वो रिस्क बियर करती है, कॉस्ट ऑफ मॉर्टेलिटी रिस्क मतलब डेथ रिस्क। कंपनी जब हमारी लाइफ का रिस्क अपने सर पे लेती है ना तो फ्री में नहीं लेगी, कंपनी लेती है आपसे उसका चार्ज। अब उसका पर्पस क्या है, मतलब हम ये जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ना, इसका पर्पस क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी मेन और बेसिक आइडिया को फुलफिल करता है कि हमारा लाइफ इंश्योर हो जाए, ओके। और अगर अगर डेथ नहीं भी हुई तो भी हमको कैश तो मिलती ही है, लमसम अमाउंट तो मिलता ही है। इन लाइफ इंश्योर्ड, अगर लाइफ इंश्योर्ड, इफ द लाइफ इंश्योर्ड डाइज प्रीमेच्योरली, मतलब प्रीमेच्योरली का मैंने आपको उस दिन है ना मीनिंग बताया था। अगर अगर समझो पॉलिसी का लाइफ है, पॉलिसी की लाइफ बात करूं, पॉलिसी की, अगर आपने पॉलिसी खरीदी, समझो मैंने पॉलिसी खरीदी 30 years के लिए, लेकिन 30 years से पहले ही मेरी डेथ हो गई, मेरे 30 years की बात नहीं कर रही हूँ, पॉलिसी के 30 years की लाइफ की बात कर रही हूँ। पॉलिसी के 30 years मैच्योरिटी पीरियड से पहले मेरी डेथ हो गई, तो अब कंपनी डेथ के टाइम पे पेमेंट करती है किसको, मुझे तो नहीं करेगी, अब मैं तो चली गई, तो किसको करेगी, फैमिली। तो फैमिली को, यस, फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलता है, वो बोल रहे हैं कि फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने का केयर द कंपनी विल टेक केयर ऑफ हिज और हर फैमिली, ठीक है। तो ये भी एक पर्पस होता है, पर्पस मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैं क्यों लेती हूँ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का मेरा पर्पस क्या होता है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब नेक्स्ट देखो, दिस लमसम मनी रिप्रेजेंट्स द इंश्योर्ड ह्यूमन लाइफ वैल्यू फॉर हिज लव्ड वंस। अब जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो लव्ड वंस हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनको उनकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी ना आगे चल के,
उनको लमसम अमाउंट मिलता है, तो उनकी फैमिली भी तो सिक्योर होनी चाहिए, उनको भी तो पैसा चाहिए चलाने के लिए घर, तो वो सिक्योर हो जाते हैं। द टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑल्सो कम्स हैंडी एज इनकम रिप्लेसमेंट प्लान। अब अब आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लो तो आपको ये भी तो बेनिफिट है कि जब आप इनकम अर्न करना बंद करते हो, सपोज आपकी इनकम अर्न होना बंद हो गई, जॉब चला गया, बट आपका ये इनकम रिप्लेसमेंट प्लान है, मतलब फ्यूचर में जो आपको इनकम मिलनी है ना वो जरूर मिलेगी, डेथ चाहे हो या नहीं हो। इट इज एज गुड एज इनकम रिप्लेसमेंट प्लान। आया समझ में? इसमें से आप जितना जितना आपको लिखा हुआ है ना पॉलिसी अमाउंट, वो जरूर आपको मिलता है मैच्योरिटी पीरियड पे या डेथ पे, वट एवर कम्स अर्लियर। is in the place of payment of lump sum amount to dependence of happening of unfortunate death। अगर कभी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो किसी की अगर फैमिली में, तो उस पे जो इतने लोग डिपेंडेंट थे, उसकी चिल्ड्रन, उसके वाइफ सपोज, तो उनको लमसम अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, या फिर अगर ऐसा चाहिए कि उनकी फैमिली को मंथली इनकम जैसा चाहिए तो वो भी मिलेगा। आपकी कंपनी आपको मतलब ऐसे बेनिफिट्स देती है कि आपके पीरियोडिकल, जैसे आपका घर का खर्चा उठाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, तो वो भी कंपनी आपके लिए करती है। समझ में आ रहा है? पीरियोडिकल पेमेंट्स का मतलब होता है, पे आउट्स का मतलब होता है एक्सपेंसेस करना। जैसे आपके नाम पे कंपनी एक्सपेंस करती है, पर ये सब फ्री में नहीं करती, कंपनी आपसे प्रीमियम चार्ज करती है। ठीक है ना? नेक्स्ट है डिसेबिलिटी। अब ये टर्म, क्या टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको डिसेबिलिटी कवर भी देता है? हाँ बिल्कुल देता है। अगर पर्सन डिसेबल्ड हो गया, अब अर्न नहीं कर पाएगा, तो भी आपकी कंपनी, आपको जो ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना, तब आपको पूरा का पूरा पैसा भर के देती है। नॉर्मली ये टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कवर्स ओनली डेथ, वैसे तो सिर्फ डेथ कवर होता है, पर अभी अब जब हम परचेज करते हैं ना, जब हम पॉलिसी परचेज करते हैं, तो अभी ये क्लॉज आ गया है, एक न्यू न्यू ना रूल आ गए हैं कि अब आप जब परचेज करते हो ना, तो आपको ऑप्शन होता है कि आप है ना डेथ के साथ साथ डिसेबिलिटी लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो टिक कीजिए उस पे, उसे कहते हैं राइडर। राइडर, RIDER, क्या बोलते हैं उसे, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा जो जो एक्स्ट्रा चीजें आपको चाहिए ना, इसके अलावा भी ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो उसको, उन सब चीजों को कहते हैं राइडर। ये देखो लिखा भी हुआ है। व्हेन इट इज परचेज, व्हेन इट इज मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जब आप प्लान खरीदते हो ना कोई, तो व्हेन इट इज परचेज्ड विथ डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन राइडर ऑन द मेन पॉलिसी, मतलब आपको एज गुड एज एक राइडर दिया जाता है कि आपने इसके साथ एक और चीज फ्री में खरीद ली। ठीक है। एंड इफ समवन वर टू सफर अ कैटास्ट्रोफ, मतलब ऐसी कोई लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, कोई सडन एक्सीडेंट एंड ऑल ये सब हो गया, तो बेनिफिशियरी को पे किया जाता है, कंपनी आपको पे करती है। समझ आया? क्लियर हुआ ये? यस मैम। यस मैम। हाँ। अभी देखो फिर से थर्ड पॉइंट में वो सेम चीज बोल रहा है कि टर्म इंश्योरेंस में आपको एक और बेनिफिट होता है, पर्पस एक और होता है मेरा। हम पर्पस पढ़ रहे हैं, हमारा पर्पस है ना एक और होता है कि टर्म इंश्योरेंस एज अ राइडर भी अवेलेबल होता है। प्रोटेक्शन अंडर टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज यूजुअली प्रोवाइडेड एज स्टैंड अलोन पॉलिसी, मतलब खुद एक अकेली पॉलिसी मैं खरीद सकती हूँ, एक एक सिंगल स्टैंड अलोन, एक सिंगल पॉलिसी में खरीद सकती हूँ जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकता है। या फिर मुझे चाहिए तो उसके साथ मैं राइडर भी खरीद सकती हूँ, बट इट कुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड थ्रू अ राइडर इन द पॉलिसी। मतलब आपने एक पॉलिसी खरीदी, वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, वो जनरल जनरल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे होती है, बस आपने वो खरीद ली। फिर आपने बोला कि बाद में इसको मैं चाहूँ तो मैं इसको कन्वर्ट भी कर सकती हूँ टर्म इंश्योरेंस में। ठीक है, तो मतलब एज अ राइडर भी आपने खरीद लिया। ठीक है ना? एग्जाम्पल देखो, ये जो मैंने बोला इसका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। A pension plan may contain provision for death benefits to be payable in case one dies before the death when the pension is to start। मतलब समझो अभी आपने ना, अभी ये ऑप्शन था आपके पास, ये जरूरी नहीं होता, ये ऑप्शन होता है। अब आपके पास एक ऑप्शन था जब आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा, तो उसमें ऑप्शन क्या था कि जब जब ये पॉलिसी रिडीम होगी ना, मतलब मेच्योरिटी डेट आएगी इसकी, तो आप मेच्योरिटी डेट पे इसको कन्वर्ट कर सकते हो।
कैसे कन्वर्ट कर सकते हो उसको पेंशन प्लान में। यानी कि उस पेंशन प्लान में क्या होगा कि आप जब भी रिटायर हो जाओगे ना, तो आपको घर बैठे जो जो कंपनी पेंशन देती है, अब वो कंपनीज तो देना बंद कर दी है, पेंशन तो बंद हो गया, आपको पता होगा ये। अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो पेंशन तो बंद हो गया, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू कर दिया पेंशन प्लान। अब आपको चाहिए तो जब आपकी मैच्योरिटी होगी ना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, तो आपको चाहिए तो कन्वर्ट कर दो उसको पेंशन प्लान में। अब कन्वर्ट करने से क्या हो जाएगा, राइडर मिल जाएगा आपको। मतलब ये एज अ राइडर आप ले सकते हो पेंशन प्लान। उसमें क्या होता है ऑप्शन कन्वर्ट करने का। कन्वर्ट होने से क्या हो जाएगा, आपको घर बैठे बैठे जो इनकम आपकी चली गई, अभी आप रिटायर हो गए, इनकम तो बंद हो गई, जॉब चली गई, तो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी पेंशन हर महीने आपको जो भी आपका अमाउंट बनता है पॉलिसी के हिसाब से, वो घर बैठे बैठे आपको मिलेगा। ठीक है। और मैम अगर, हाँ जी, मैम वो वापिस समझाओ ना, टर्म इंश्योरेंस एज अ राइडर, वो समझा नहीं। देखो मैं बताती हूँ। टर्म इंश्योरेंस एज अ राइडर का मतलब, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो ये एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप पेंशन प्लान। समझो अभी है ना, मेरे पास एक टर्म इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अभी उसकी मैच्योरिटी है 20 इयर्स के बाद। अब 20 इयर्स खत्म हो गए, अब मैं कंपनी के पास गई, तो कंपनी ने कहा आपको एक राइडर दिया जाता है। एक और मतलब इसमें राइडर है, राइडर मतलब एक और ऑप्शन है इसके साथ अटैच्ड है। जैसे होता है ना, ये एक के साथ एक फ्री मिल रहा है आपको, वैसा उसको बोलते हैं राइडर। मतलब इसमें ये भी मिलेगा, ये भी ऑप्शन मिलेगा, ये भी ऑप्शन मिलेगा, आपको जो ऑप्शन चूज करना है वो आप देख लो। तो कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि आप 20 इयर्स के बाद, जो 20 इयर्स खत्म हो गए, अब आपको लमसम अमाउंट लेकर जाना है, कंपनी से जाना है, तो या तो नहीं, तो आपको एक और ऑप्शन है कि आप पेंशन प्लान में कन्वर्ट करवा दो। पेंशन प्लान का बेनिफिट क्या होता है, जब आप रिटायर होते हो ना, तो आपको आपकी जॉब तो चली गई, रिटायर हो गए, कंपनी छोड़ दी आपने, रिटायर हो गए, तो आपकी इनकम भी बंद हो जाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेंशन प्लान के अंडर में, अगर आप पेंशन प्लान में एंटर करते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी आपके रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन देना स्टार्ट करती है। मतलब आपकी सैलरी बंद, पेंशन शुरू। समझ में आया, ये बेनिफिट होते हैं। अच्छा अगर, Yes, हाँ, अगर समझो रिटायरमेंट डेट, जब से पेंशन शुरू होने वाला था उसके पहले ही डेथ हो गई, जब से पेंशन शुरू होने वाला था उसके पहले ही डेथ हो गई, लेकिन मैंने राइडर लिया था। क्या राइडर लिया था, पेंशन प्लान का मैंने राइडर लिया था ना, तो मतलब मुझे मेरे डेथ पे मेरी फैमिली को उसका पैसा जरूर मिलता। पेंशन तो नहीं मिलेगा, अब मैं तो चली गई, तो डेथ के टाइम पे अगर मेरी डेथ उसके पहले हो जाती है ना, तो पूरा का पूरा अमाउंट जितना बनता है लमसम अमाउंट, वो मेरी फैमिली को भर के दिया जाता है। अभी क्लियर हुआ? यस, इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. yes मैम। ओके। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबिलिटी। क्या हम इसको रिन्यू भी कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हो आप, मैम आपकी करवाओ आवाज नहीं आ रिन्यू। रही है। बाकियों को भी नहीं आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है? हम लोग को आ रही है यस मैम। यस मैम आ आ रही रही है है। ना? अच्छा। बहुत बेटा धीरे आ रही है। विशांत, आपके यहाँ से प्रॉब्लम होगा, बाकी सबको आवाज ठीक से आ रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो विशांत आपके यहाँ से प्रॉब्लम होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो, रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी का मतलब क्या होता है, हम क्या इसको रिन्यू कर सकते हैं? सपोज सपोज मेरी डेथ नहीं हुई और मैच्योरिटी पीरियड आ गया। अब मैच्योरिटी पीरियड तो आ गया, 20 इयर्स का मेरा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था, 20 इयर्स हो गए, पर मुझे अभी लमसम अमाउंट नहीं चाहिए, मुझे अभी कैश की नीड नहीं है। मैं चाहती हूँ और मेरा पैसा बढ़े, और मेरी पॉलिसी का अमाउंट बढ़े, ये जो अमाउंट है ना वो मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ और भी। तो क्या आप इसी सेम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आपने पहले रखी थी, क्या आप उसको रिन्यू कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रिन्यू कर सकते हैं। कुछ कुछ प्लान्स में ऑप्शन होता है रिन्यू करने का, तो आप रिन्यू कर सकते हैं। कब रिन्यू कर सकते हैं? एट द एंड ऑफ द टर्म ड्यूरेशन।
मतलब कब रिन्यू कर सकते हैं इसको, जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी डेट आएगा ना, तब इसको रिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए ये बोल रहा है रिन्यूएबिलिटी, मतलब इसका एक और फीचर है जिसकी वजह से मैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदती हूँ कि ये रिन्यूएबिलिटी है, मतलब इसको रिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आया समझ में ये वाला पॉइंट कि फिर से रिपीट करूं? यस मैम, आया समझ में। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्टेबिलिटी। अभी कन्वर्टेबिलिटी का मतलब आप क्या इसको टर्म लाइफ इंश्योरेंस, जो आपका टर्म इंश्योरेंस है, टर्म मतलब पीरियड फिक्स्ड है, 20 इयर्स, 30 इयर्स, 50 इयर्स फिक्स्ड है, क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो हमेशा के लिए, मतलब जब तक मेरी लाइफ चले तब तक के लिए कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, होल लाइफ, उसको बोलते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस। क्या आप टर्म इंश्योरेंस को होल लाइफ इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कंपनी आपको न्यू पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाकर देती है, उसके लिए लिखा हुआ, आप पढ़ोगे ना तो समझेगा। और ये प्रिविलेज उनको मिलता है जो परमानेंट कैश वैल्यू चाहती हैं, हु विश टू हैव परमानेंट कैश वैल्यू इंश्योरेंस बट आर टेम्पररी अनेबल टू अफोर्ड इट्स हाई प्रीमियम्स। ठीक है, मतलब ये वो लोग करते हैं कन्वर्ट जिनको कैश वैल्यू का बेनिफिट चाहिए होता है। कैश वैल्यू मतलब जो मैंने आपको बताया था ना कि आप एक अलग से अकाउंट क्रिएट किया जाता है लोगों के लिए और उसमें कैश डाली जाती है, आप जितना प्रीमियम देते हो ना उसमें से थोड़ा 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 आपके कैश वैल्यू में जमा किया जाता है, कैश वैल्यू के अकाउंट में। और कुछ सालों के बाद, समझो 10 ईयर्स के बाद, कंपनी ने बोल दिया कि 10 ईयर्स तक रुको और 10 ईयर्स के बाद आप इसको मतलब एक अमाउंट समझो फिक्स कर दिया कंपनी ने, 50,000 रुपए 6 महीने में विड्रॉ कर सकती हो। तो आपको ये भी तो ऑप्शन है ना कैश वैल्यू का। ये प्रिविलेज होता है, ये बेनिफिट होता है, ये कुछ ही लोगों को दिया जाता है, कुछ ही पॉलिसी होल्डर्स को दिया जाता है। होल लाइफ में ये ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आप इसीलिए भी कन्वर्ट कराते हो टर्म से होल लाइफ में, इसलिए भी जाते हो क्योंकि आपको कैश वैल्यू का बेनिफिट चाहिए होता है। ठीक है, कैश वैल्यू का बेनिफिट ये भी होता है ना कि समझो आपके अकाउंट में 50,000 की कैश जमा हो गई है जो आप विड्रॉ करना चाहते हो। तो अब आपके पास सपोज किसी महीने में ना प्रीमियम नहीं है भरने के लिए, खर्चा बहुत हो गया आपके घर का, तो आपको ना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को पैसा ही नहीं है प्रीमियम देने के लिए। तो जिनको कैश वैल्यू होता है ना बेनिफिट, वो लोग क्या बोलते हैं कंपनी को कि कैश वैल्यू मेरे पास कितना जमा हुआ, कंपनी बोलती है 50,000, तो बोलती है उसमें से मेरा प्रीमियम काट दो। समझा? तो जिनके हाई प्रीमियम्स होते हैं ना, हाई, जो प्रीमियम कभी कभी नहीं भी भर सकते ना, तो वो कैश वैल्यू में से एडजस्ट करते हैं। कंपनी को बोलते हैं जो कैश वैल्यू मैंने उठानी थी ना, जितनी अमाउंट की 50,000 की, उसमें मेरा प्रीमियम एडजस्ट कर दो, अभी मैं प्रीमियम भरने के मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती मैं प्रीमियम भरने के, टेम्पररी कुछ टाइम के लिए मेरा जो प्रीमियम है ना वो क्योंकि बहुत ज़्यादा है और मेरे खर्चे ज़्यादा हो गए हैं तो मैं प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? यस मैम। यस मैम। अब नेक्स्ट है आपका यूएसपी। हम क्या पढ़ रहे हैं? ये सारे टर्म इंश्योरेंस के फीचर्स पढ़ रहे हैं। अब यूएसपी का मतलब क्या होता है? यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ अ टर्म इंश्योरेंस इज इट्स लो प्राइस। मतलब ये यूनिक सेलिंग है, इसमें ना आप लार्जर अमाउंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हो अपने बजट में। वन कैन बाय relatively large amounts of life insurance on limited budget। बड़े बड़े अमाउंट की पॉलिसीज खरीद सकते हो, जैसे 50 लाख रुपए की पॉलिसी मैंने खरीद ली 60 लाख रुपए की पॉलिसी, 20 लाख रुपए की पॉलिसी। ये तो बहुत बड़ी पॉलिसी है, अमाउंट तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा बजट नहीं है ना, प्रीमियम भी तो बढ़ जाएगा ना। फिर अगर मैंने बड़े अमाउंट की पॉलिसी खरीदी तो प्रीमियम भी तो बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, कंपनी आपको मतलब टर्म पीरियड बढ़ा कर देती है उसमें और आपका बजट के हिसाब से आपको बना कर देती है। अगर अमाउंट बड़ा चाहिए ना तो कंपनी क्या करती है फिर, 5 साल के बजाय बोलती है 10 साल की पॉलिसी लो, 30 इयर्स के बजाय बोलेगी 40 इयर्स की पॉलिसी ले लो, और 40 इयर्स के बजाय बोलेगी 80 इयर्स की पॉलिसी ले लो, 70 इयर्स की पॉलिसी ले लो। समझ आ रहा है आपको? तो बजट कम हो जाएगा, प्रीमियम कम, क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स बहुत ज्यादा आप पे कर रहे हो 30 इयर्स के लिए इंस्टेड ऑफ 10 इयर्स, 40 इयर्स के लिए इंस्टेड ऑफ 20 इयर्स। तो आप जब भी ज्यादा
टाइम के लिए पे कर रहे हो तो बजट कम हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा ना, खर्चा कम, प्रीमियम कम। तो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन में कंपनी आपको आपके हिसाब से, अगर आपको बड़े अमाउंट की पॉलिसी खरीदनी है तो कंपनी आपको आपके लिमिटेड बजट के हिसाब से पॉलिसी बनाकर देती है। इसीलिए तो इसे यूनिक कहते हैं ना, यूनिक। यूनिक मतलब कस्टमर के हिसाब से, हर एक कस्टमर का हर एक अपना अपना बजट होता है ना, तो इसीलिए इसको यूनिक कहा गया है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिमिटेड बजट में इसमें फोकस किसको करना है? लार्जर अमाउंट ऑफ पॉलिसीज कैन बी बॉट ऑन अ लिमिटेड बजट। ठीक है। अच्छा, अब एक और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक और फीचर होता है जिसको बोलते हैं वेरायंस। वेरायंस का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारे अलग अलग फीचर्स, जिसको बोलते हैं वेरायंस। अब देखो, उसमें नंबर 1 है डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें मॉर्गेज भी है और क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस है। फिर सेकंड है इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। फिर थर्ड है टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न्स ऑफ द प्रीमियम्स। देखते हैं वन बाय वन क्या है ये वेरायंट्स। अब वेरायंट्स का मतलब होता है इसके डिफरेंट फीचर्स, ठीक है ना। सबसे पहला फीचर इसका डिक्रीजिंग टर्म अश्योरेंस। अब डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे जैसे आपकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का पीरियड बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका जो अमाउंट है ना, अमाउंट वो डिक्रीज होता जाएगा। देखो, these plans provide death benefits that decreases the amount with the term of the coverage। जैसे जैसे आपका कवरेज आगे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे बेनिफिट डिक्रीज होता जाएगा। मतलब जो आपको लमसम अमाउंट मिलना है ना, वो डिक्रीज होता जाएगा। सपोज एग्जाम्पल ले लो, 10 ईयर की डिक्रीजिंग टर्म पॉलिसी आपने खरीदी। आपने क्या खरीदा? डिक्रीजिंग टर्म पॉलिसी। टर्म पॉलिसी का नाम क्या है? डिक्रीजिंग। कितने साल के लिए खरीदी? 10 ईयर्स के लिए। ध्यान से सुनना। मे 10 ऑफर अ बेनिफिट ऑफ ₹1 लाख फॉर डेथ इन द 4th ईयर with a decreasing amount by 10,000 in each policy anniversary to finally come to zero at the end of 10th year। अभी देखो, आपने आप अभी इसमें क्या लिखा हुआ है कि हर 4 ईयर्स में, एवरी 4 ईयर्स में आपको 1 लाख रुपीस मिलेगा। ठीक है, एवरी 4 ईयर्स में 1 लाख रुपीस मिलेगा फॉर डेथ बेनिफिट, फॉर डेथ बेनिफिट। लेकिन ये भी याद रखो, आपकी पॉलिसी का नाम है डिक्रीजिंग। तो 4th ईयर में, फर्स्ट 4th ईयर में 10,000 कम हो जाएगा, समझा। और ऐसा चलता रहेगा एवरी ईच पॉलिसी एनिवर्सरी, ऐसा हर साल चलता रहेगा। एनिवर्सरी मतलब जो एनुअली एक एक साल में जो खत्म होगा। अभी देखो, फर्स्ट ईयर खत्म 10,000 कम हो जाएगा, सेकेंड ईयर खत्म 10,000 कम, थर्ड ईयर खत्म 10,000 कम हो जाएगा। ऐसे कर करके 10 साल आपने किया और फाइनली 10 साल में आपने 1 लाख को 10-10 हजार से कम किया तो जीरो पे आ गया ना। तो फाइनली कम टू जीरो एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। समझ में आया? द प्रीमियम पेबल ईच ईयर हाउएवर रिमेन्स लेवल। मतलब जो प्रीमियम आप पे करते हो वो सेम होता है। मैं आपकी आवाज यस, आवाज क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, तो जब अभी जिसने कहा ना उसके यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा। बाकी सबको सुनाई दे रही है आवाज क्लियरली? Yes, ma'am. ओके ओके, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। देखो, डिक्रीज होता जा रहा है ना अमाउंट, 10,000 से डिक्रीज होता जा रहा है। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. हाँ, इसीलिए इसको डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस बोलते हैं। इसी डिक्रीजिंग में ना एक ऑप्शन होता है आपके पास, मॉर्गेज रिडम्पशन। सी, मॉर्गेज रिडम्पशन में क्या होता है? इट इज अ प्लान ऑफ डिक्रीजिंग इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। ऑफ कोर्स ये किसके अंडर पार्ट, ये किसका पार्ट है? मॉर्गेज रिडम्पशन डिक्रीजिंग का पार्ट है। इसमें ना एक बेनिफिट आप ले सकते हो। क्या बेनिफिट ले सकते हो? इसमें ना आपने जो ये पॉलिसी खरीदी है ना, ये वाली डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, ये वाली जो पॉलिसी खरीदी है ना डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, इसमें एक और पार्ट होता है, एक और टाइप होता है जिसमें मॉर्गेज रिडम्पशन टाइप ले सकते हो।
इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। इसका मतलब आप ये डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी जो आपने खरीदी है, इसके बेसिस पे, इसको गिरवी रख के, इसको आप मॉर्गेज करके, मॉर्गेज मतलब गिरवी रख के, इसको आप गिरवी रख के लोन भी ले सकते हो। और वो लोन का जो पेमेंट होगा ना, वो ईएमआई के फॉर्म में होगा। ईएमआई का मतलब होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब आप धीरे धीरे हर महीने आप इसको पे करके, इंस्टॉलमेंट पे कर करके, आउटस्टैंडिंग जो आपने लोन जो लिया था वो अमाउंट चुका कर, फिर ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपका खुद का हो जाएगा। मतलब आप इसको गिरवी भी रख सकते हो। इसका बोलने का मतलब ये है। अच्छा, सेकंड है इसका डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस का एक और टाइप है जिसको बोलते हैं क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस मतलब इट इज अ टाइप ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्लान डिजाइन टू पे बैलेंस ड्यू टू लोन। मतलब कभी कभी ना आप लोन ले लेते हो पहले से ही, पहले ही आपका लोन लिया हुआ है। अब आपने जो लोन लिया है ना, उसको चुकाने के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो। समझ में आ रहे हैं? इफ द बोरोवर डाइज, समझो अभी जब जिसने लोन लिया था, समझो मैंने लोन लिया था, अब मुझे लोन की रीपेमेंट करनी है, अभी मेरी डेथ हो गई, समझो लोन की रीपेमेंट करने से पहले मेरी डेथ हो गई, तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो मेरा लोन चुकाएगी। कंपनी वाले जाके मेरी फैमिली को परेशान नहीं कर सकते कि आपके घर में जिनकी डेथ हुई है उन्होंने लोन लिया था हमसे, आप रीपेमेंट करो। नहीं, मेरी फैमिली वालों को परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम क्या था जो मैंने खरीदी थी? क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये डिक्रीजिंग टर्म में होते हैं। मतलब धीरे धीरे कंपनी है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो जहाँ से मैंने लोन लिया था ना, उनको पेमेंट करती जाती है। तो जितनी जितनी पेमेंट करती जाती है उतना उतना अमाउंट रिड्यूस होता जाता है। सपोज मेरी फैमिली को मेरी डेथ के टाइम पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देने वाली थी 1 करोड़, और कौन सा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने खरीदा था? क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस, डिक्रीजिंग क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। अब मैंने लोन भी लिया था 30 लाख रुपीज का, तो मेरी डेथ हो गई, अब मैं लोन तो चुका नहीं पाई। समझो चलो 10 लाख मैंने चुकाया था जब तक मैं अलाइव थी, तो बाकी कितने का लोन मुझे चुकाना है? 30 में से 10 लैक्स मैं लोन दे चुकी हूँ, बाकी कितना देना है? 20. 20 लैक्स। अब मेरी डेथ हो जाती है सपोज, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए देने आएगी। 1 करोड़ की मेरी पॉलिसी थी ना, तो 1 करोड़ रुपए मेरी कंपनी को, मेरी फैमिली को मिलेंगे। बट उस 1 करोड़ में से 20 लैक्स कम मिलेंगे, कम, डिक्रीजिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस। कम क्यों मिलेंगे? क्योंकि 20 लैक्स है ना जो, वो पहले लोन का रीपेमेंट होगा। किससे लोन लिया था आपने? कोई भी ABCD बैंक से, जो भी एक कोई बैंक का नाम ले लो, उस बैंक से आपने लोन लिया था, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पहले लोन चुकाएगी उस बैंक का, मेरी खुद के अमाउंट में से, और उसके बाद जाके मेरी फैमिली को पेमेंट करेगी। मतलब मेरी फैमिली को कितना मिलेगा? रिड्यूस होने के बाद, माइनस होने के बाद, लोन रीपेमेंट होने के बाद 80 लाख रुपीज मेरी फैमिली को मिलेगा। अब समझ में आया एग्जाम्पल से? Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. अब है ना, ये था आपका डिक्रीजिंग टर्म अश्योरेंस। अश्योरेंस बोलो या इंश्योरेंस बोलो, बात एक ही होती है। उसमें 2 टाइप्स थे, मॉर्गेज रिडम्पशन और क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा इंक्रीजिंग टर्म अश्योरेंस। अब इंक्रीजिंग टर्म अश्योरेंस मतलब धीरे धीरे अमाउंट बढ़ेगा बढ़ेगा। ये तो जनरली है ना, जब हम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं ना, तो ज्यादातर लोग है ना ये वाला ही खरीदते हैं, टाइप, ये वाला टाइप में ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं, इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस। अब इसमें क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, जैसे नाम में बताया हुआ है, इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, ये धीरे धीरे आपके टर्म पॉलिसी का जो अमाउंट है ना, वो इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है मैम? देखो, पॉलिसी का अमाउंट तो उतना ही होता है, जैसे 50 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख की पॉलिसी है, वो 5 लाख 10 लाख तो सेम रहेंगे, लेकिन इसमें ना आपको बोनस मिलता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग से मैच होके ना, एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होता है कंपनी का, वो इंडेक्स के हिसाब से। अभी देखो, जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, छोटे होते हैं तो खर्चे कम होते हैं, बड़े होते हैं तो पढ़ाई के भी खर्चे, फिर ट्यूशन के खर्चे, फिर बहुत सारे ऐसे खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर हम जब जॉब करते हैं तब और खर्चे बढ़ जाते हैं।
ठीक है, घूमने फिरने का खर्चा, फिर मेरी फैमिली रेज हुई, मेरे बच्चे हुए, फिर उनके खर्चे। तो जब जैसे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं ना एज में, तो वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो हमारी एज के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग के जो खर्चे हैं ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग माना रहने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं जीने के लिए, तो वो खर्चे करना उसका ना एक इंडेक्स बना होता है कंपनी के पास। उस इंडेक्स के हिसाब से ना आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग को मैच करते हुए कंपनी आपका जो कवरेज है ना वो बढ़ाती है। कवरेज मतलब सॉरी कवरेज नहीं, मतलब पॉलिसी का अमाउंट है ना, जो बोनस है ना वो बढ़ाती है धीरे धीरे इंटरवल्स पे। हर 5 साल में थोड़ा अमाउंट बढ़ गया, एवरी 5 ईयर्स में थोड़ा थोड़ा बोनस बढ़ रहा है आपका। तो जब आपका मैच्योरिटी टाइम आएगा ना, मैच्योरिटी पीरियड आएगा पॉलिसी टर्म का, तब आपको जितना अमाउंट दिख रहा है ना उसे बढ़ के ही मिलेगा। तो उसे कहते हैं इंक्रीजिंग टर्म अश्योरेंस। ठीक है, नेक्स्ट होता है लास्ट, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वेरायंस पढ़ रहे हैं, वेरायंस में थर्ड पॉइंट है टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न्स ऑफ प्रीमियम। अब ये क्या होता है, नाम में ही देखो, नाम में ही समझेगा आपको। ये वो टर्म इंश्योरेंस है जिसमें मुझे लास्ट में प्रीमियम वापस भी मिल सकता है अगर मैं सरवाइव कर रही हूँ तो। ठीक है, देखो, द प्लान लीव्स द पॉलिसी होल्डर विद द सेटिस्फैक्शन दैट he or she has not lost anything in case he or she survives the term. Obviously the premium paid would be much higher than that applicable for an equivalent term assurance without returns of premium. अब इसमें क्या होता है, कंपनी आपको ना जितना आप प्रीमियम भरते हो ना कंपनी को, समझो आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, एग्जाम्पल ले लो 30 ईयर्स की। अब 30 ईयर्स आप कंपनी को प्रीमियम भरते हो, 30 ईयर्स, समझ रहे हो आप। या फिर चलो कंपनी ने आपको बोल दिया कि आप है ना 16 ईयर्स प्रीमियम भरो, बाकी का भरने की जरूरत नहीं है। ऐसी भी आजकल पॉलिसीज निकली है टर्म इंश्योरेंस में कि कुछ ही टाइम आपको प्रीमियम भरना है, फिर बाकी के साल नहीं भरना है ना। तो ऐसे केसेस में जो पॉलिसी होल्डर है, जब मैच्योरिटी का टाइम आता है, अगर वो सरवाइव कर रहे हैं तो अच्छा, सरवाइव नहीं भी करता डेथ पे भी फैमिली को अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। मतलब उसको ये कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कि मैंने जितना कंपनी को प्रीमियम भरा था उससे ज्यादा मुझे मिल रहा है कंपनी से कि कम मिल रहा है, ऑब्वियसली ज्यादा ही होता है। ठीक है, मतलब जितना आप प्रीमियम भरते हो ना उससे कहीं ज्यादा ही आपको अमाउंट कंपनी आपको भर के देती है, टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ बोनस। तो टर्म अश्योरेंस विद द रिटर्न्स ऑफ प्रीमियम्स मतलब आपको प्रीमियम के जितना पैसा नहीं मिलता है कंपनी से वापस जब मैच्योरिटी पीरियड आते हैं, उससे कहीं ज्यादा मिलता है। ठीक है, उसे कहते हैं विथ रिटर्न्स ऑफ प्रीमियम्स। ठीक है ना। नेक्स्ट वेराइंट्स के बाद वाला पॉइंट है रेलिवेंट सिनेरियोस। मतलब आपको ना कुछ एड ऑन कवरेज भी मिल सकता है, जैसे ग्रोइंग ईयर्स है या कन्वर्टेबिलिटी ऑप्शन है, डिक्रीजिंग टर्म अश्योरेंस चाहिए कि इंक्रीजिंग चाहिए, सप्लीमेंट्स, मतलब आपको ना एड ऑन मतलब एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स आपको चाहिए तो एड ऑन करके आपको रेलिवेंट सिचुएशन, मतलब जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपको बेनिफिट्स कंपनी देती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अब सिचुएशन आ गई ऐसी कि आपकी ना इनकम चली गई, जॉब चली गई, तो आप कंपनी को सिर्फ इन्फॉर्म कर दो, वो आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट आपको सैलरी के नाम पे पे करती है। लेकिन ये पहले से इंक्लूड होना चाहिए आपकी पॉलिसी में। डिसेबिलिटी हो जाती है तो पहले से इंक्लूड होना चाहिए ना। सिनेरियोस मतलब सिचुएशंस, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब कंपनी आपको एडिशनल बेनिफिट्स देती है। ठीक है, तो उस बेनिफिट के लिए आपको पहले से कंपनी को बताना पड़ता है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। अब कंपनी आपको फ्री में नहीं करती है, मतलब ये सर्विसेज आपको कंपनी फ्री में नहीं देती है, कुछ तो आपसे चार्ज करती है। चार्ज मतलब कंसिडरेशन। क्या चार्ज करती है? प्रीमियम। ठीक है, ये वो बता रहे कि हमसे कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है। सो ये सारी पॉइंट्स जो हमने पढ़ी ना आए तक, ये सारी पॉइंट्स थी आपकी टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड। फीचर्स थे ये, फीचर्स। सबसे पहला था पर्पस, हमारा पर्पस क्या होता है लेने का, ये ए पॉइंट। बी में डिसेबिलिटी पढ़ा। सी टर्म इंश्योरेंस एज अ राइडर, मतलब एक राइडर करके भी आप टर्म इंश्योरेंस को ट्रीट कर सकते हो। डी
रिन्यूएबिलिटी, आप इसको रिन्यू करवा सकते हो। ई कन्वर्टेबिलिटी, मतलब आप कब जब चाहे टर्म इंश्योरेंस को होल लाइफ में कन्वर्ट करवा सकते हो। यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, मतलब बायर के लिमिटेड बजट के हिसाब से इसको बनाकर बेचा जाता है। वेरायंट्स में हमने पढ़ा डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, जिसमें धीरे धीरे अमाउंट कम होता जाता है। फिर पढ़ा इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस, जिसमें अमाउंट धीरे धीरे इंक्रीज होता है। और फिर हमने पढ़ा टर्म इंश्योरेंस विथ रिटर्न्स ऑफ द प्रीमियम। इसमें हमेशा कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होती है कि मेरा लॉस नहीं होगा, कंपनी मुझे नुकसान में नहीं जाने देगी। ठीक है। नेक्स्ट इज रेलिवेंट सिनेरियोज, मतलब सिचुएशन के हिसाब से कंपनी आपको बेनिफिट्स देती है, एडिशनल बेनिफिट्स प्रोटेक्शन के लिए, आपको रिस्क कवर करके देती है। एंड लास्ट आपका कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब जैसे कंपनी आपको अश्योरेंस प्लान बेच रही है तो उसके अगेंस्ट में प्राइस चार्ज करती है, उस प्राइस का नाम होता है प्रीमियम। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. That's it. I think it's 11:48 already. I mean, our time is over. So we will continue. Term insurance is over, huh? Just let's have a look at limitations of term insurance. It is about only for 2 minutes that I will take. See, major problem arises when the purpose of taking insurance cover is more permanent. See, हमको ना कभी कभी ऐसा लगता है कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी, उसमें भी डिसएडवांटेज हो सकते हैं ना टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में। जब मुझे परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस, जब ये हमारी लाइफ है ना लंबी हो जाती है, लंबी, जब मुझे पता नहीं होता, देखो कभी भी किसी को पता नहीं होता कि एज क्या है मेरी डेथ की, तो कभी कभी है ना हम लोग पॉलिसी का पीरियड है ना छोटा ले लेते हैं 20 years, तो अमाउंट भी छोटा होता है, जो मुझे लमसम अमाउंट मिलेगा ना वो भी छोटा होगा। तो ये डिसएडवांटेज है ना। अगर आप परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस वाली लोगे ना, होल लाइफ, जो भी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड टाइप होल लाइफ इंश्योरेंस, तो उसमें बेनिफिट क्या होता है, उसमें जो अमाउंट होता है ना, जो लमसम अमाउंट मिलता है मैच्योरिटी पीरियड पे या डेथ पे, वो बहुत बहुत ह्यूज होता है। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वैसे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में इतना बड़ा बड़ा अमाउंट नहीं मिलता आपको। क्यों? क्योंकि उसका टर्म भी तो छोटा होता है ना, 20 years, 15 years, 30 years। हाँ, एक्सटेंड कर सकते हैं 65 to 70 years के एज तक, बट उसकी एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी मतलब उस टर्म का जब भी एंड होगा, मैच्योरिटी डेट आएगी, तब आपका लमसम अमाउंट आपको जेनरेट होगा, जो कि इतना अच्छा नहीं होता है, मतलब इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है, 20-30 लाख रुपए ही होते हैं। होल लाइफ में अगर आप देखोगे तो उससे भी ज्यादा होता है, 50-60 lakhs, 1 crore तक जाता है आपका अमाउंट, अगर होल लाइफ इंश्योरेंस में जाते हो आप। और होल लाइफ में फैमिली को पैसा मिलता है। होल लाइफ का मतलब ही यही होता है कि जब आपकी डेथ होगी तब कंपनी पे करेगी। आई एम सॉरी टू से दैट, बट एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब समझो मेरी डेथ जब होगी ना, उसके बाद कंपनी फैमिली को पैसा देती है, लमसम अमाउंट पे करती है। होल लाइफ में होता ही ऐसा है। वेर इज टर्म प्लान में ऐसा नहीं होता है। तो ये टर्म प्लान में ना एक एक डिसएडवांटेज है। लिमिटेशन का मतलब होता है डिसएडवांटेज, कि इसमें अमाउंट बहुत छोटा होता है और टर्म पीरियड फिक्स होता है, मतलब इसकी एक्सपायरी होती है। ठीक है, एक्सपायरी जब हो गई, जब मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगी, तब आपको पेमेंट मिल जाती है। इज इट क्लियर? ये था आपका लिमिटेशन ऑफ टर्म इंश्योरेंस। तो अब जो हमने किया ना, वो दैट वाज रिलेटेड टू टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस के हमने ये सारे फीचर्स किए, लिमिटेशंस किए, और उसका मीनिंग पढ़ा कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है। अब इसी चैप्टर में हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स, और उसके बाद पढ़ेंगे एंडोवमेंट इंश्योरेंस प्लान्स। ठीक है, 2 more टाइप्स टू गो। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टर्म इंश्योरेंस आप रीड कीजिए, कुछ भी डाउट हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो क्लियर कर सकते हैं। आप रीड करने का टाइम लीजिए, ठीक है ना? इज इट क्लियर? Okay. Yes, ma'am. Yeah, okay. So shall we wind up for the day? Yes, ma'am. Okay. Okay. Bye everybody. Take care. Keep revising. Bye, ma'am. Take care, you Bye, also. ma'am. Thank you. Bye, ma'am. Bye, Bita. Bye.